Yeah, good afternoon, everybody of you. Our today's lecture is titled as Structuring Your Thesis Effectively. So, in today's class, we are going to discuss about the role of formatting in academic writing. Let me begin afresh. What we do in this subject, Essentials of Thesis Writing, Course Code MP07. In this course, we learn academic vocabulary. There is a general English and there is academic English. Academic English, academic vocabulary, we use it when we do academic writing. That is when we write a research paper, when we write a research essay, or we write our thesis. So in this subject MP07, course code MP07 titled Essentials of Thesis Writing, we learn about academic vocabulary. In our thesis, we are not going to write it in simple general English or everyday English. We make use of academic vocabulary. Then we are going to learn about the proper reading techniques. Reading techniques means when we read the research papers, research essays, books, we read it effectively so that we make notes. We read it effectively so that we imbibe the important information. And later on, what do we do? After effective reading, we make notes. And then our notes, they take the shape of our first draft of our research paper or our thesis chapter. And then we keep on reframing it, taking care that we have used the right kind of vocabulary, taking care that the content is all invasive. हमने सारा कंटेंट जो हमें वो पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए उसको कवर करा है, राइट? जो कंटेंट है वो एक एविडेंस के रूप में हमारे टॉपिक को सशक्त, पावरफुल मैनर में प्रेजेंट करता है. और उसके साथ साथ हम ये चीज का भी ध्यान रखते हैं कि हमने प्रॉपर अपनी थीसिस को, अपने रिसर्च पेपर को फॉर्मेट किया है. फॉर्मेटिंग से मायने होते हैं कि हमने क्या जो है पर्टिकुलर हमने फॉन्ट साइज यूज किया है, क्या पर्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल यूज किया है जब हम अपनी थीसिस राइट कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग के कौन से रूल्स हमने फॉलो कर रहे हैं, मार्जिन्स हमारे कितने स्पेस पे हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम मार्जिन्स. उसके अलावा हम ये चीज का भी ध्यान रखते हैं इन बिटवीन द लाइन स्पेसिंग कैसे है. एट द सेम टाइम वी ऑल्सो टेक केयर how to write the book titles, the journal titles in italics. When we are quoting something, we are supposed to put it in double inverted commas. So ये सारे जो चीजें हैं, all these things, they come under proper formatting. So today's lecture, how to structure your thesis. The emphasis of today's lecture is to learn in general the formatting style. Are we clear about this? Just give me a thumbs up if you have understood something. I've given you a background of today's lecture and in general about the subject. Give me a thumbs up if you have understood. Right. So let's proceed further. The role of formatting in academic writing. The very first point of importance is formatted research paper, formatted thesis gives a look of professionalism to your work. Proper formatting, it enhances the overall presentation of your content. May it be for your thesis, may it be for your research writing. Formatted work makes it look polished and credible. By credible means the scholarly people, they understand your work. They believe in your work when it is properly formatted. So this professionalism
is very crucial in academic circles where first impressions matter. When any person, कोई भी शख्स जो है, स्कॉलर है, एकेडमिशियन है, जब वो आपके काम को देखता है, जब वो काम प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड होता है, तो वो आपके काम में उसका विश्वास बढ़ता है, वो आपके काम को सीरियसली लेता है। तो मैं अगर सही हिंदी में एक आपको बताऊं कि आज के जो हमारा लेक्चर है उसका विषय क्या है, प्रॉपर फॉर्मेटिंग की महत्ता। ठीक है, महत्व, प्रॉपर फॉर्मेटिंग का महत्व कैसे। अगर आपका वर्क फॉर्मेटेड है, मतलब आपने ये केयर किया है कितने मार्जिन्स पे आपका कंटेंट शुरू होना है, लेफ्ट से आपको कितना मार्जिन रखना है, लेफ्ट से आपको 1.5 का मार्जिन रखना होता है। वैसे रूल है कि चारों साइड पे 1 इंचेस का मार्जिन होना चाहिए, लेफ्ट में हम स्पेशली 1.5 इंचेस का मार्जिन रखते हैं ताकि बाइंडिंग में आधा इंच जो है वो यूज हो जाए और हमारा कंटेंट रीडेबल रहे। ऐसा नहीं हो कि वो बाइंडिंग के अंदर जो है हमारा कंटेंट कट ऑफ हो जाए, राइट। ये भी फॉर्मेटिंग का हिस्सा है। उसके अलावा आपको फॉन्ट स्टाइल कौन सा रखना है, टाइम्स न्यू रोमन अकेडमिक, और थ्रू आउट टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका आधा चैप्टर टाइम्स न्यू रोमन पे जा रहा है, फिर आपने कैलिबरी स्टार्ट कर दिया। फॉन्ट साइज आपका 12, इन बिटवीन द लाइन स्पेसिंग आपकी 1.5, इंडेंट करना है आपको। 1 टैब पे आपको एवरी पैरा यू हैव टू इंडेंट, दैट इज 0.5 inches, right? Whenever you begin a new para, whenever you have to quote somebody, that quote has to come in double inverted commas or quotation mark, and after the quote finishes you are supposed to write in bracket the source of the quote, which often happens to be the surname of the author, from where the quote, from the book from where the quote has been taken, including the page number. Supposedly you have taken a quote from my book, so in the bracket what would you write? Varach 125. By 125 you mean the book of Varach, and this quote has been taken from page 125. So this was in general about structuring your thesis, formatting your thesis, formatting your research paper, right? So we are proceeding further. Role of formatting in academic writing. पहला जो फायदा है प्रोफेशनलिज्म। जब आपका काम प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड होता है, एज पर द स्टाइल शीट होता है। अब हर सब्जेक्ट की एक स्टाइल शीट होती है। लैंग्वेजेस वालों की होती है MLA, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, उसके बाद उसकी एडिशंस भी होती हैं, जैसे हम MLA का 9th एडिशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, सोशल साइंसेस वालों का होता है APA स्टाइल शीट। सिमिलरली कोई सब्जेक्ट शिकागो फॉलो करते हैं, राइट? So what is professionalism? Your overall presentation of the thesis looks very academic, right? And second is readability. जब आपका काम फॉर्मेटेड होता है प्रॉपर्ली तो वो समझ में आता है, पढ़ने वाले को समझ में आता है। अलग अलग पैरास बने होते हैं यूनिफॉर्मिटी से, 0.5 इंच पे हर पैरा इंडेंट होता है, प्रॉपर मार्जिन्स होते हैं, रीडेबिलिटी बढ़ती है आपके काम की, और आप अपने आइडियाज को बहुत क्लियरली और इफेक्टिवली आप उनको कन्वे कर सकते हो। गुड फॉर्मेटिंग जो होती है वो आपके डॉक्यूमेंट की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करती है। एंड द रीडर्स कौन हो सकते हैं? आपके फेलो स्कॉलर्स हो सकते हैं, आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, आपके एग्जामिनर होते हैं। वो आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो आपकी फाइंडिंग्स हैं, जो आपका कंटेंट है, उसको बहुत अच्छे से वो समझ सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग का पहला फायदा प्रोफेशनल लुक आता है आपके डॉक्यूमेंट का, दूसरा रीडेबिलिटी बढ़ती है, तीसरा एडहेरेंस टू गाइडलाइंस, मींस जब
आप जो भी गाइडलाइंस है, जैसे मैंने आपको बोला MLA स्टाइल शीट लैंग्वेजेस के लिए, APA सोशल साइंसेस के लिए, जब आप गाइडलाइंस को फॉलो करते हो तो एक यूनिफॉर्मिटी आपके वर्क को मिलती है। और अगर आप वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते तो आपका एग्जामिनर आपकी थीसिस सिग्निफिकेंट रिविजन्स के लिए वापस भेज देता है। फोर्थ, आपके जो ग्रेडिंग है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है अगर आपकी थीसिस प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड नहीं होती है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फायदा आपको होता है कि अगर आपकी थीसिस प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड होती है तो कल आपको अपना पेपर पब्लिश करने में, आपकी थीसिस को बुक फॉर्म में पब्लिश करने में कोई भी मुश्किल नहीं आती है। सो दीज वर द 5 pointers which speak about the importance of formatting your thesis. First, it gives a professional look. Second, it improves the readability. Third, you follow the guidelines in uniformity. And fifth is that you get good grades. Otherwise, your examiner will return back your thesis for significant revision. And last but not the least, a properly formatted work welcomes publication. Let it be a research paper or also your book form if you want to publish your thesis. So these 5 pointers were stating the importance of a well-structured, formatted scholarly work. We move further. Crafting effective titles and headings. Now, beginning with the title of the thesis. Title of the thesis should be clear, concise, descriptive of your research. आपका जो टाइटल है ना थीसिस का, वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, आपके वर्क को डिस्क्राइब करना चाहिए। जैसे मेरे PhD का थीसिस का टाइटल था रिकवरी एंड हीलिंग एज द लीड मोटिव इन सिलेक्टेड पार्टीशन नैरेटिव्स। रिकवरी एंड हीलिंग 2 थीम्स थे जो थ्रू आउट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द कंक्लूजन जो एक थीम रन थ्रू कर रहा था पूरे थीसिस में। वो एक लीड मोटिव की तरह, लीड मोटिव होता है एक थीम जो हर जगह विजिबल होता है, वैसे एक लीड मोटिव होता है, एक म्यूजिकल नोट। सो रिकवरी एंड हीलिंग एज अ लीड मोटिव, किस चीज में लीड मोटिव है? सिलेक्टेड पार्टीशन नैरेटिव्स। पार्टीशन नैरेटिव्स हैं तो वो मैंने नैरेटिव्स का इस्तेमाल क्यों किया कि इसमें मैं पोइट्री भी ले सकती हूँ, इसमें मैं फिक्शन भी ले सकती हूँ, इसमें नॉन फिक्शन भी ले सकती हूँ, इसमें शॉर्ट स्टोरी भी ले सकती हूँ और इसमें मैं कोई ड्रामा भी ले सकती हूँ, कोई सिनेमा भी ले सकती हूँ। तो मैंने एक जनरल वर्ड यूज कर लिया नैरेटिव, ठीक है, जो सब चीजों को कवर करेगा। सो दोबारा से पॉइंट पे आते हैं। टाइटल शुड बी क्लियर, कंसाइज, ब्रीफ होना चाहिए और आपके रिसर्च को डिस्क्राइब करे। अवॉइड यूजिंग जार्गन, ठीक है, जो स्लैंग है उसका इस्तेमाल आपको ना तो अपने थीसिस में करना है, ना रिसर्च पेपर में करना है, ना ही टाइटल में यूज करना है। जार्गन नहीं यूज करना है, आपको स्लैंग नहीं यूज करना है, प्रॉपर एकेडमिक इंग्लिश का इस्तेमाल करना है। और हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ हेडिंग्स। हायरार्किकल मतलब व्हाट कम फर्स्ट, व्हाट कम्स नेक्स्ट, व्हाट कम्स लास्ट, पीढ़ी दर पीढ़ी जिसको हम बोलते हैं। हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होना है हेडिंग्स का? सबसे पहले जो चैप्टर का टाइटल है वो बोल्ड और अपर केस और सेंटर्ड होना है। आप देख पाओगे बोल्ड मतलब चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑल कैपिटल, राइट, बोल्ड एंड अपर केस। उसके बाद आपके मेन सेक्शन के जो हेडिंग आने हैं वो लेफ्ट अलाइन रहने हैं। हेडिंग का फॉन्ट साइज 14 रखते हैं हम, ठीक है। सब सेक्शंस जो हो जाते हैं या बाकी पूरे कंटेंट के लिए हम फॉन्ट साइज 12 रखते हैं। कंसिस्टेंसी अक्रॉस द डॉक्यूमेंट, एक यूनिफॉर्म स्टाइल फॉलो होना। ये नहीं कि आपके पहले चैप्टर का टाइटल को आपने बोल्ड और अपर केस और सेंटर्ड कर दिया, दूसरे चैप्टर का टाइटल में बोल्ड नहीं किया, अपर केस नहीं किया, लेफ्ट अलाइन कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। पूरा यूनिफॉर्मिटी आपकी होनी चाहिए, क्रूशियल है बहुत
बहुत ही ज्यादा सब चैप्टर सब सेक्शंस में एक यूनिफॉर्मिटी से चैप्टर के टाइटल्स दिए जाए, मेन सेक्शन के हेडिंग दिए जाए और सब सेक्शन के हेडिंग जो है वो दिए जाए। ठीक है, पेज नंबरिंग अभी आ जाते हैं। कैसे पेज नंबरिंग हम करते हैं? जो प्रीलिमिनरी पेजेस होते हैं हमारे, प्रीलिमिनरी पेजेस मतलब आपकी मेन थीसिस शुरू होने से पहले कुछ पेजेस होते हैं, आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं कि आपका कंटेंट प्लेजरिज्म फ्री है, एक्नॉलेजमेंट होती है जिसमें आप सबको थैंक करते हो जिन्होंने आपको मदद करी ये वर्क कंप्लीट करने के लिए। एब्स्ट्रैक्ट भी होता है आपका थीसिस का, थीसिस से पहले लगता है। तो जो प्रीलिमिनरी पेजेस होते हैं ना, उनकी नंबरिंग आपको करनी है रोमन न्यूमरल स्मॉल्स में। जैसे ही आपका मेन कंटेंट शुरू हो जाएगा, यू हैव टू स्विच टू अरेबिक न्यूमरल्स, राइट? और उसकी प्लेसमेंट कैसे होनी है न्यूमरल्स की, आपको नंबरिंग की प्लेसमेंट कैसे होनी है, ईदर ऑन द टॉप राइट और बॉटम सेंटर। ठीक है, दो जगह पे आप नंबरिंग कर सकते हो, टॉप राइट और बॉटम सेंटर, एज पर योर सब्जेक्ट, एज पर योर इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइंस। इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइंस मतलब इन जनरल पूरे वर्ल्ड में सेम फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, फिर भी थोड़ा सा यू नो वी कैन सेट अप आवर ओन स्टैंडर्ड्स एज पर आवर इंस्टीट्यूशन, ताकि फ्यूचर में जब हम कहीं पे हमारा काम भेजे तो हम बोले नहीं नहीं ये हमारी इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइंस के हिसाब से है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। जो आपकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एक गाइडलाइन रखती है, जैसे मैंने बोला इन बिटवीन लाइन स्पेसिंग 1.5, अगर आप किताबें देखोगे, एमएलए सब चीज देखोगे तो उसमें आएगा इन बिटवीन द लाइन स्पेसेस स्पेसिंग 2 इंचेस होनी चाहिए। बट इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइंस मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज दे फॉलो द स्पेसिंग ऑफ 1.5, राइट? तो पेज पेपर प्लेसमेंट्स कैसे होनी है, पेज नंबर पे इनकी प्लेसमेंट कैसे होनी है, ईदर ऑन द टॉप राइट और बॉटम सेंटर। ठीक है, कमिंग नेक्स्ट, मार्जिन्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। मार्जिन्स क्यों मैटर करते हैं? मार्जिन बड़े इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे प्रिवेंट द टेक्स्ट फ्रॉम बीइंग कट ऑफ ड्यूरिंग बाइंडिंग। ठीक है, और दूसरा हमारा वर्क एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता है जब प्रॉपर मार्जिन्स होते हैं। स्टैंडर्ड मार्जिन सेटिंग्स क्या है? टॉप से 1 इंच हमें लीव करना है, बॉटम से 1 इंच लीव करना है, राइट से 1 इंच लीव करना है, लेफ्ट पे 1.5 इंचेस लीव करना है टू accommodate the binding, right? So this was about the margin. What are the margin settings and why the margins are important. Coming to text formatting essentials, font type and size. I have already spoken to you. Appropriate font we use to make sure that our work is professional, work is readable. The preferred font, it includes Times New Roman at 12 point for standard document. Consistency in font and size, that is font style and font size throughout the document is crucial. हम कहीं पे लिबर्टी ले सकते हैं, सिर्फ टाइटल में हम 14 पॉइंट का फॉन्ट साइज रख सकते हैं। लाइन स्पेसिंग, प्रॉपर लाइन स्पेसिंग, उससे क्या रीडेबिलिटी होती है। जो स्टैंडर्ड रूल है डबल स्पेसिंग है, बट यूजुअली हम क्या करते हैं 1.5 इंचेस की इन बिटवीन द लाइन स्पेसिंग हम रखते हैं। पैरास को इंडेंट करते हैं बाय 0.5 इंचेस और 1 टैब, और पैराग्राफ्स को फुली जस्टिफाई भी करते हैं फॉर अ क्लीन प्रेजेंटेशन। यूजुअली क्या होता है, जो हमारी स्टाइल शीट है वो कहती है कि राइट से आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, बट हम करते हैं फॉर अ क्लीन प्रेजेंटेशन। सो इतनी लिबर्टी हम ले सकते हैं, राइट से भी फुली जस्टिफाई करना है आपको। मैनेजिंग करेक्शंस एंड इंसर्शंस, right? How are you supposed to manage the corrections and insertions? अगर आप कुछ डिलीट करते हो, अगर आप कुछ नया इंसर्ट करते हो, तो प्रूफ रीडिंग टेक्निक्स क्या है आपकी, ये चेक करने के लिए कि मेरा वर्क प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड है कि नहीं। रीड अलाउड टू कैच द एरर्स, ग्रामर टूल्स आप यूज करोगे,
डिजिटल टूल्स लाइक ग्रामरली, हेमिंगवे, और आप पीयर रिव्यू भी करा सकते हो अपने वर्क को। कैसे पीयर रिव्यू करवा सकते हो? यू कैन मेक द अदर स्कॉलर्स टू गो थ्रू योर वर्क। कई बार हम उस वर्क में इतने एब्जॉर्ब होते हैं कि हमारे से कोई गलती बारी बारी स्लिप हो जाती है। वो ही कोई फेलो स्कॉलर एक फ्रेश माइंड से उसको देखता है तो तुरंत वो मिस्टेक को कैचअप कर लेता है। तो आपका क्या मकसद बनता है कि आप प्रूफ रीडिंग बहुत अच्छे से करो, फॉर्मेटिंग चेक करने के लिए, ग्रामर चेक करने के लिए, कंटेंट चेक करने के लिए। हर राउंड ऑफ प्रूफ रीडिंग में आपको क्या करना है? अभी जो मैं प्रूफ रीडिंग चेक कर रहा हूं मैं सिर्फ फॉर्मेटिंग चेक करूंगा। अभी जो मैं प्रूफ रीडिंग अगली बार की कर रहा हूं उसमें ग्रामर चेक करूंगा। अभी जो मैं प्रूफ रीडिंग कर रहा हूं मैं ये चेक करूंगा कि मेरा कंटेंट कंप्लीट है, मेरा कंटेंट एविडेंस बेस्ड है, मेरे कंटेंट के फेवर में सपोर्टिंग डिटेल्स है कि नहीं, कहीं पे मेरे काम में रिडंडेंसी तो नहीं। ये चीज की बात मैंने 2 पैरा पहले करी थी, फिर से मैं 4 पैरा के बाद वो ही बात बीटिंग अबाउट द बुश करने लग गया हूं, तो वो हमारे कंटेंट की क्रेडिबिलिटी लूज होती है। हमारे कंटेंट में लोग भरोसा करना बंद कर देते हैं फिर कि ये इंसान को कुछ नहीं पता, वही बात घुमा फिरा के करते जा रहा है और मतलब की बात कर नहीं रहा है। राइट? सो प्रूफ रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले खुद से प्रूफ रीडिंग करें, डिजिटल टूल्स से प्रूफ रीडिंग करें। डिजिटल टूल्स पे कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, बिकॉज वो तो वो उतना ही बताएगा जिसके अंदर वो जितना डाटा, जितना कंटेंट उसके अंदर ऑलरेडी इंसर्टेड है। आप अपने फेलो स्कॉलर से आप एडिटिंग करवा सकते हो, अपने प्रोफेसर से, कोई प्रोफेशनल से एडिटिंग करवा सकते हो, प्रूफ रीडिंग करवा सकते हो। पहले पूरी तरह से खुद सैटिस्फाई होके कि ओके, फ्रॉम माय साइड द वर्क इज डन। राइट? नाउ वी प्रोसीड फर्दर। Supposedly we are adding tables, right? Now the tables which are being added, table मतलब टेबल में कोई जानकारी हो सकती है, कोई डाटा हो सकता है, राइट? कोई ग्राफ्स हम ऐड कर सकते हैं, कोई पिक्चर्स, विजुअल्स हम अपने थीसिस में ऐड कर सकते हैं, तो उनकी भी नंबरिंग होनी बहुत जरूरी है। जैसे जो पहले चैप्टर में आपने टेबल ऐड करे उसमें आप नंबर कर सकते हो टेबल 1, टेबल 1.1, 1.2। सिमिलरली जब आप चैप्टर 2 में आते हो तो फर्स्ट टेबल इज योर टेबल 2। नंबरिंग आपको देनी है, और टेबल्स जो है जिसमें इंफॉर्मेशन है वो जो है वो जहां पे उस मुद्दे की, इशू की डिस्कशन होनी है उसके पास में ही वो स्टेटेड होने चाहिए। आपको टेबल का साइटेशन देना भी बहुत जरूरी है कि दिस टेबल, दिस इंफॉर्मेशन टेबल हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस प्लेस। Right? The positioning of the tables should be near to the paragraph where they were first referenced. जहां पे उनके बारे में बात करी गई है वहीं पे वो टेबल प्लेस्ड होने चाहिए। आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपके टेबल्स दे फिट विद इन द मार्जिन्स। जो आपने 1 इंच की मार्जिन्स चारों तरफ से छोड़ी है, लेफ्ट से 1.5 की, आपके टेबल वो मार्जिन को डिसओबे नहीं करे। योर टेबल शुड फिट विद इन द मार्जिन्स। Coming next, same thing goes for using illustrations and figures. That is using graphs, charts, images, diagrams, maps. उनको भी आप ऐसे ही नंबर करोगे। चैप्टर 3 का पहला फिगर 3, दूसरा फिगर 3.1, 3.2। उनके नीचे आप उनके कैप्शंस और टाइटल लगा सकते हो। ये ध्यान रखो कि आप हाई रेजोल्यूशन इमेजेस यूज करो क्लैरिटी के लिए, और फिगर्स कोशिश करो कि आप उनको सेंटर अलाइन करो। राइट? Coming to labeling and referencing tables and figures, I have already spoken about that. कॉमन फॉर्मेटिंग मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, सबसे पहले
इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग कर देते, इनकंसिस्टेंट, कहीं पे कोई फॉन्ट साइज यूज कर सकते हैं, कहीं पे कोई फॉन्ट स्टाइल यूज कर सकते हैं, पेज नंबर इनकरेक्ट हो सकते हैं, कहीं पे रोमन नंबर जहाँ पे यूज करने थे वहां पे अरेबिक यूज करे, जहाँ पे अरेबिक यूज करने थे वहां पे रोमन करे, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को ओवरलुक करा, इग्नोर करा, बहुत सारे विजुअल्स इंसर्ट कर दिए, ओवर क्राउडिंग विद विजुअल्स। सो ये जो है 4 कॉमन फॉर्मेटिंग मिस्टेक्स हैं। पहली, आपकी फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंट होनी चाहिए थ्रू आउट, सेम आपके पैरा सेम डायमेंशन पे इंडेंट होने चाहिए, सेम फॉन्ट साइज, स्टाइल, इन बिटवीन लाइन स्पेसिंग, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। पेज नंबर्स का मार्जिन सब जगह 1 इंच का फॉलो होना चाहिए, लेफ्ट में भी 1 इंच ही रहता है, 1.5 इंच हम इसलिए रखते हैं कि वो हमारा बाइंडिंग में आ जाए और अपने कंटेंट को ओवर क्राउड, विजुअल से ओवर क्राउड नहीं करना। फाइनली एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ थीसिस, इट इज नॉट अ बुक, राइट। और आपके कोटेशंस जो है वो बता ही दिया कि जब आप कहीं से कुछ कोट करते हो डबल इन्वर्टेड में डालना है, जब वो 40 वर्ड से ज्यादा हो जाता है तो फिर आपको एक ब्लॉक कोट के रूप में उसको डालना है, मतलब आपको वो कंटेंट जो है रेस्ट ऑफ द पैरा से डिस्टिंग्विश करने के लिए उसको आप 0.5 इंचेस इंडेंट करके बना सकते हो। नॉर्मल होता है 0.5, उससे भी आगे 0.5 इंचेस और एड ऑन करके एक ब्लॉक की तरह उस कंटेंट को मेंशन कर सकते हो। फिर वहां पे आपको इन्वर्टेड कॉमास डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज इन जनरल अबाउट योर फॉर्मेटिंग टेक्निक्स। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, प्रॉपर मार्जिन, स्पेसिंग, करेक्शंस, डबल चेक करो फॉर्मेटिंग को, राइट। And this is all. Now the house is open to any questions, answers, queries. If you have any, do let me know. Otherwise I am ending the meeting. और ये जो proper PPT है, this would be shared in your groups, right? And also the recorded lecture, whenever today it gets ready, it would be shared by Vaibhav. We need to be very thankful to him, Vaibhav of EduLive. He would be sharing the recorded lecture with you all. So any query, or should I end today's? You can raise your hands if you have a query, put it in the chat box. Otherwise I am ending the meeting. Thank you so much.